Welcome back students. Let us see today what is pedigree analysis. Pedigree का मतलब होता है inheritance pattern of genetic traits. मतलब कैसे कोई trait from one generation to another pass हो रहा है उसको बोलते हैं pedigree. And generally जो traits हैं वो diseased traits देखे जाते हैं pedigree में. So कैसे कोई genetic disease from one generation to another transfer हो रही है उसको बोलते हैं pedigree. And analysis means to find out. So pedigree analysis का मतलब होता है finding the family history of genetic disorders. That means how parents transfer a genetic disorder to children. That is studied by pedigree analysis. This is a representation of a pedigree. Pedigree को हम family tree भी बोलते हैं क्योंकि pedigree जो है वो एक flow chart से represent करते हैं and this looks like a family tree. Let us understand this pedigree. A square represents a मेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं विद अ स्क्वायर एंड अ फीमेल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल. इफ अ लाइन इज ड्रॉन बिटवीन द टू दैट मीन्स उनके बीच में मेटिंग हुई है, राइट. इफ अ लाइन इज ड्रॉन बिलो और उसके नीचे शो किया गया है मेल्स एंड फीमेल्स दैट मीन्स दीज आर द पेरेंट्स एंड दीज आर द चिल्ड्रन. दैट मीन्स दिस इज द फर्स्ट जनरेशन. So again this is daughter, this is a son, again a daughter and a son. This is how the children are represented. Circle means female and square means male. Then in first generation, look, this son is married to another female, right? Again below children are there. So this is second generation. This is a daughter, this is a son. So this is the parent generation, this is the first generation and the second generation. Now if a parent has genetic disease, तो वो कैसे represent करेंगे? By coloring. If this square is colored, that means this male has a genetic disease and if it transfers to children, for example this male transfers the disease to this daughter and to this daughter, then we will color it to show that the daughters have the genetic disease. So this is the representation of pedigree. Now to find out how this disease is transferred from one generation to another, we should know the types of pedigree. Types of pedigree means we should know the inheritance pattern. That is कोई genetic disease कैसे transfer हो रही है वो डिपेंड करेगा द टाइप ऑफ पेडिग्री पे. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पेडिग्री. वी नो दैट कोई भी जीन है वो या तो डोमिनेंट होगी या रिसेसिव. दिस वी हैव लर्न्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स, राइट. एंड जीन्स आर ऑन क्रोमोसोम्स. वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट. आउट ऑफ 23 पेयर्स 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स, राइट. एंड 1 पेयर दैट इज XY आर सेक्स क्रोमोसोम. सो हमारी जो जीन है वो या तो ऑटोसोम्स पे होगी या सेक्स क्रोमोसोम पे होगी. ऑन द बेसिस ऑफ दिस टाइप्स ऑफ पेडिग्री होते हैं. दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट. दैट मीन्स हमारी जो डिजीज कैरिंग जीन है वो ऑटोसोम पे है और वो डोमिनेंट है. सो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इफ अ जीन इज लाइक दिस और इन दिस फॉर्म देन ओनली इट विल बी डोमिनेंट, राइट. One capital letter is present, so it is dominant. So if the gene is on autosomes और वो इस फॉर्म में है तो डिजीज एक्सप्रेस होगी, राइट. अगर जीन इस फॉर्म में है तो डिजीज एक्सप्रेस नहीं होगी. दिस इज नोन एज ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री, राइट. सेकेंड इज ऑटोसोमल रिसेसिव. ऑटोसोमल रिसेसिव मीन्स द डिजीज कैरिंग जीन इज ऑन ऑटोसोम एंड इट इज इन दिस फॉर्म. जब डिजीज कैरिंग जीन इस फॉर्म में होगी तभी ही वो डिजीज कॉज करेगी, अदरवाइज वो इस फॉर्म में होगी तो डिजीज कॉज नहीं करेगी. लेट अस सी द थर्ड वन. व्हेन द डिजीज कैरिंग जीन इज ऑन सेक्स क्रोमोसोम मोस्टली एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स ज्यादा होते हैं. सो पेडिग्री इज ऑफ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव. एक्स लिंक्ड डोमिनेंट मीन्स अगर एक भी एक्स पे डिजीज कैरिंग जीन है तो वो एक्सप्रेस होगी एंड दैट विल बी कॉल्ड एज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पेडिग्री. X-linked recessive means if the gene is on both X, सिर्फ इस फॉर्म में वो डिजीज कॉज करेगी. So X-linked recessive means when the disease is on both X
then only it will be expressed, then only disease will be caused, otherwise disease express नहीं होगी. So these are the 4 types of pedigree. And to find out a particular type of pedigree, किसी भी particular pedigree को समझने के लिए there are some rules. कुछ general features हैं हर एक type के, कुछ rules हैं जो हमें help करते हैं particular type of pedigree को find out करने के लिए. Let us understand now the rules for each type of pedigree. So these are the 4 types of pedigree with their general rules. That means ये कुछ features हैं जिनके through easily पता चलता है कि कौन सी type of pedigree है. फाइन, तो उनको हम अब समझ लेते हैं. फर्स्ट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट. ऑटोसोमल डोमिनेंट का क्या फीचर है? दैट चिल्ड्रन ऑफ अफेक्टेड माइट बी अनअफेक्टेड. दैट मीन्स इफ पेरेंट्स आर अफेक्टेड, अगर दोनों पेरेंट्स भी अफेक्टेड हैं, अगर दोनों पेरेंट्स में डिजीज है, तो भी ये पॉसिबल है कि जो चिल्ड्रन है वो अनअफेक्टेड हो. ठीक है, जो चिल्ड्रन है वो अनअफेक्टेड हो, मतलब चिल्ड्रन नॉर्मल हो. पेरेंट्स को डिजीज है बट चिल्ड्रन को डिजीज नहीं है. सो दिस इज वन यूनिक फीचर ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट, राइट. सेकंड फीचर इज ऑटोसोमल डोमिनेंट नेवर स्किप्स जनरेशन. अगर आप पेडिग्री में देखते हो कि कोई जनरेशन स्किप नहीं की हुई है, सो इट इज पॉसिबल कि वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है. जनरेशन स्किप नहीं की है मतलब इफ दीज आर द पेरेंट्स एंड वन ऑफ द पेरेंट हैज जेनेटिक डिसऑर्डर. ठीक है, सो ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है ये चिल्ड्रन में भी ट्रांसफर होगा, राइट. एंड इफ दिस डिसऑर्डर इज इन दिस पेरेंट, तो यहाँ पे भी वो जेनेटिक डिसऑर्डर ट्रांसफर होगा, राइट. सो इट नेवर स्किप्स जनरेशन. कोई भी जनरेशन स्किप नहीं किया है. थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर इज अफेक्टेड चिल्ड्रन यूजुअली हैव अफेक्टेड पेरेंट्स. दैट मीन्स अगर चिल्ड्रन अफेक्टेड हैं, अगर चिल्ड्रन में कोई जेनेटिक डिजीज है, इसका ये मतलब है कि उनके पेरेंट्स में भी वो जेनेटिक डिजीज थी. ये किसका फीचर है? ऑटोसोमल डोमिनेंट का. वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट इज हंटिंगटन्स डिजीज. लेट अस सी द रूल्स ऑफ सेकंड पेडिग्री नाउ, ऑटोसोमल रिसेसिव. इसके क्या फीचर्स हैं? फर्स्टली, इट इज मोस्टली ऑब्जर्व्ड दैट चिल्ड्रन आर अफेक्टेड ऑफ नॉर्मल पेरेंट्स. हमारे पेरेंट्स नॉर्मल हैं. दिस इज पॉसिबल इन ऑटोसोमल रिसेसिव कि जो हमारे चिल्ड्रन हैं वो अफेक्टेड हो. ठीक है, तो ये इसका उल्टा हुआ, राइट. सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव कि पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड, पेरेंट्स आर नॉर्मल बट चिल्ड्रन कैन बी अफेक्टेड. ठीक है, सो दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव. ये फीचर हमें ऐसे भी याद रह सकता है कि दिस इज रिसेसिव. तो रिसेसिव कब शो होता है? जब दोनों स्मॉल हो, राइट. मतलब ये हो सकता है कि दीज बोथ आर हेटेरोजाइगस, और हेटेरोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट कैरेक्टर इज शोन. तो इनमें डोमिनेंट कैरेक्टर शो हो रहा है और इसलिए इनमें डिजीज नहीं है, बट इनके चिल्ड्रन में होमोजाइगस रिसेसिव जा सकता है, राइट. इन पेरेंट्स के थ्रू दिस कैन बी ट्रांसफर्ड. और अगर ये जीनोटाइप होगा तो चिल्ड्रन कैसे होंगे? अफेक्टेड होंगे, राइट. सो चिल्ड्रन अफेक्टेड हो सकते हैं ऑफ नॉर्मल पेरेंट्स. So this is a feature of autosomal recessive. So it is very easy to remember now. Autosomal recessive skips generation. So ये possibility है कि generation जो है वो skip हो जाए. Again ये possibility है कि generation skip कर जाए recessive में, because there is possibility कि जो ये genotype है ये किसी भी children में जाए ही ना. So जब तक ये genotype नहीं होगा तब तक disease जो है वो show नहीं होगी. It is autosomal recessive. Fine. So autosomal recessive can skip generation. Examples of autosomal recessive include sickle cell anemia and phenylketonuria. Let us see now X-linked dominant. X-linked dominant के क्या features हैं? If fathers are affected, all daughters will be affected. अगर diseased trait father में है, if the diseased trait is in father, the father will transfer the trait to all the daughters. जो इसकी daughters हैं वो सारी affected होंगी of the affected father. So this is one unique feature of X-linked dominant. Another important feature is the father never transfers the diseased trait to son. Father से son में disease नहीं जाती है. So this is X-linked dominant. This is also easy to remember क्योंकि father में XY होता है. So son का genotype XY कब बनेगा? जब mother से X आएगा. And if mother से X आएगा that means father जो है वो diseased trait son में नहीं ट्रांसफर करेगा, राइट. सो दिस इज X-linked dominant.
Example of X-linked dominant is vitamin D resistant rickets. Fine. Let us see the last inheritance pattern. It is X-linked recessive. X-linked पे है जीन और recessive है तब डिजीज शो होगी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसका सबसे यूनिक फीचर है दैट मेल्स आर मोर अफेक्टेड. अगर पेडिग्री आपको एग्जाम में आता है एंड यू फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द मेल्स आर अफेक्टेड, अगर आपको पेडिग्री में ये शो हो रहा है दैट मोस्ट ऑफ द मेल्स आर अफेक्टेड, सो इसका मतलब है कि जो पेडिग्री है दैट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव. वन मोर इंपॉर्टेंट फीचर इज कि फीमेल्स जो हैं वो अफेक्टेड नहीं होती हैं, फीमेल्स जो है वो कैरियर होती हैं. ठीक है, कैरियर बेसिकली ऐसे शो किया जाता है हाफ कलर्ड. सो कैरियर फीमेल होती है और वो अपने सन को ट्रांसफर करती है. सो फादर जो है एक्स लिंक्ड रिसेसिव में फादर जो है वो सन को डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करता है. फादर ट्रांसफर्स द डिजीज टू फीमेल एंड फीमेल इज नॉट अफेक्टेड. फीमेल बिकम्स द कैरियर और कैरियर फीमेल जो है वो सन में ट्रांसफर करती है. इसको इससे समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हियर फादर इज अफेक्टेड, सो इट विल ट्रांसफर द डिजीज टू डॉटर. ठीक है, इसने डिजीज ट्रांसफर की डॉटर को. डॉटर इज नॉट अफेक्टेड बट डॉटर कैरीज द डिजीज ट्रेट. डॉटर जो है वो कैरियर है एंड देन इट ट्रांसफर्स द डिजीज टू मेल्स. सो अगर हमें ऐसा पेडिग्री मिलता है जिसमें ग्रैंडफादर इज ट्रांसफरिंग द ट्रेट टू ग्रैंडसन, तो वो क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव पेडिग्री है. फाइन. इसको हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी कहते हैं. क्रिस क्रॉस क्यों बोल रहे हैं? द फादर इज गिविंग द डिजीज ट्रेट टू डॉटर एंड डॉटर इज ट्रांसफरिंग द ट्रेट टू सन. सो ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है. A good example of X-linked recessive is hemophilia. To remember the rules of these inheritance pattern, you should practice a lot. इन pedigree types के rules को याद रखने के लिए जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे you will try to remember the rule, और जितना प्रैक्टिस करोगे इन रूल्स को आइडेंटिफाई करने की you will understand the pedigree better and then you can easily score marks. Let us try to solve some example questions. So ये कुछ questions हैं pedigree के, आप ट्राई करिए सॉल्व करने का. लेट अस सी दिस फर्स्ट एग्जांपल. अगर आपको खुद सॉल्व करना है सो प्लीज पॉज द वीडियो और एक बार खुद ट्राई कीजिए एंड देन सी द सॉल्यूशन. फाइन. सो लेट अस सी दिस. पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड एंड चिल्ड्रन आर आल्सो अफेक्टेड. वन मोर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ फाइंडिंग कि जो पेडिग्री है वो ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है, पहले ये फाइंड आउट करना चाहिए. ये आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा फीचर है कि मेल और फीमेल जो है वो इक्वल फ्रीक्वेंसी में अफेक्ट होते हैं ऑटोसोमल में. जैसे ये पेडिग्री है तो मुझे इसमें दिख रहा है कि जो मेल्स एंड फीमेल्स हैं वो इक्वली अफेक्टेड है. सो वन थिंग क्लियर हो रही है कि ये जो है वो ऑटोसोमल है. नाउ अब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या रिसेसिव है ये चेक करते हैं. वन इम्पॉर्टेंट फीचर दैट आई कैन सी इज अफेक्टेड चिल्ड्रन यूजुअली हैव अफेक्टेड पेरेंट्स. सो ये कब होता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट में. ठीक है, सो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है. ये हम जीनोटाइप से भी चेक कर सकते हैं. सो अगर ये डोमिनेंट है तो हम इसका जीनोटाइप ले लेते हैं कि ये ए है और कैपिटल ए स्मॉल है. राइट. सो मदर ऑल्सो आइदर कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए. राइट. बट डिजीज इज नॉट शोन इन वन ऑफ द चाइल्ड. इसका मतलब है कि ये जो चाइल्ड है वो होमोजाइगस रिसेसिव है, इसलिए ही इसमें डिजीज शो नहीं हो रही है. एंड दिस मेक्स क्लियर कि जो पेरेंट्स हैं वो हीटेरोजाइगस हैं. सो दिस इज वन ऑफ द रूल कि हीटेरोजाइगस कंडीशन में अगर पेरेंट्स अफेक्टेड हैं तो वो चिल्ड्रन को भी अफेक्ट कर सकते हैं. राइट. यहाँ पे क्यों चिल्ड्रन अनअफेक्टेड हैं? बिकॉज इस फीमेल का जीनोटाइप क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव, और जिससे इसने मेट किया दैट इज ऑल्सो होमोजाइगस रिसेसिव. तो यहाँ कहीं भी डोमिनेंट कैरेक्टर शो नहीं हुआ. अगर डोमिनेंट कैरेक्टर शो होता तो ये अफेक्टेड होते. सो दिस प्रूव्स क्लियरली कि जो पेडिग्री है दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट. राइट. Let us solve this second example now. Again, try to solve on your own and then see the solution. From this pedigree, one unique feature is very clear that father is affected and all daughters are affected. So, father is affected and all daughters affected. ये किस में होता है? X-linked dominant में. So, X-linked dominant and another feature is कि father daughter को transfer करता है and mother transfers to son. So, this is very clear. एक ही फीचर देख के समझ में आ रहा है दैट दिस इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पेडिग्री. लेट अस टेक अ थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस पेडिग्री. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं. सो इसको कंसिडर करते हैं.
From this you can easily analyze one important thing, that is pedigree में mostly sons are affected. ज़्यादातर जो मेल्स हैं वो affected हैं, right? So mostly males किस में affect होते हैं, and female is transferring to son. So this makes it very clear कि ये जो है वो X-linked recessive है, right? So you understood कि हमें just कुछ important features learn होने चाहिए pedigree types के, and it becomes very easy to analyze the pedigree. I hope you enjoyed solving these pedigree questions. If you faced any problem, let me know in comment section, and if you liked my lecture, please hit the like button and subscribe to my channel. Thank you.